Suppose you have borrowed a 3-year loan of rupees 10,000 at the rate of 9% from your employer to buy a motorcycle. If your employer requires 3 equal end of year repayments, the annual installment बताइए will be how much? 383 3950. 3951 is it? 3950 something. तो इसमें हमने Yes क्या sir, yes करा? sir. We can just look at basically हाँ 3950. So rate of interest is 9%, NPR is 3, 10,000 is the loan amount. 3 साल में देना है 9%. So the annual installment will be 3,950. Okay. So ये हमने कर लिया. Okay. Just give me a minute. present value of an uneven So, cash flows. Julie Miller will receive the set of cash flows below. What is the present value at a discount rate of so basically 10%? now what we are saying is it is present value of uneven cash flows. अब आपको क्या मिल रहा है? You are getting 600 rupees in the first year, at the end of the first year, 600 at the end of the second year, 400 at the end of the third year, and another 400 at the end of fourth year, and another 100 rupees at the end of fifth year. Okay, so you have to calculate the present value. Okay, so अब आप देखो कि पहले क्या करोगे आप? अगर हम देखें मतलब नॉर्मली व्हाट वी डू इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सो हम 600 को डिवाइड करेंगे 1.1 से. So we'll get this amount. So let's calculate. Okay. Just to calculate, how do we calculate the present value of the cash which you are going to get, which is not the same every year. Okay, the rate of return is same, which is 10%. So you have to calculate what is the present value. So what we do is, I'll just show you the calculator. Sir, I'll be leaving half hold an on. hour before, Who so is please going pardon. to leave? हाँ जी. Ramveer Khati, sir. Ramveer. Okay. So Ramveer, this is very Ramveer. important. Just Myself, you will Ramveer. be leaving at 12:45, isn't it? No, sir. Right now, ठीक है, तो ये 12:30. सुन लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करने वाले हैं. अगर 5 मिनट तक रुक लो आप, सिर्फ एक Okay. देखो. ओके. Yes, So, sir. Yes, sir. okay, just 5-7 Okay, sir. मिनट रुके Okay. रहो, फिर चले जाना आप, क्योंकि this is going to be the basis for our future lectures. Okay, so just understand that. So इसमें हम क्या करते हैं? Okay, हम sir. क्या करते हैं कि हम 600 रुपए को हमने डिवाइड करा 1.10 से. ओके, सो वी गॉट 545. इज दैट ओके? ये समझ में आया आपको? हाँ, तो अब हम Yes, ऐसे sir. ही जो है 600 रुपए को, नेक्स्ट 600 रुपए को 1.10 रेज टू पावर 2, तो इसकी वैल्यू 495 रुपए. अब हम सब ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 1670. मतलब हाउ डू वी डू इट? यूजिंग एन एक्सेल शीट. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं एनपीवी फंक्शन. Okay, so this is important. So now we just stay for this, calculations. Yes, sir. Okay, तो पहले साल में कितना मिला? 600. दूसरे साल में कितना मिला? 600. तीसरे साल में कितना मिला? 400. और चौथे साल में मिला 400. और फिर मिला 100. Okay, and what was the rate of interest? 10%. Fine. So what formula we had used actually here? NPV. Okay. So अब हम क्या करते हैं? हम फॉर्मूला में जाते हैं and choose NPV. तो NPV उठा लीजिए आप. एक बार देखिए मुझसे, फिर आप अपने आप क्वेश्चन एक और बताऊंगा मैं. Rate of interest is how much? 10%. Then in the values column, you just pick up all the values. Okay, and press enter. So this is the value. अगर मैं आपको 600 रुपए पहले साल में दूं, फिर 600 दूं, फिर 400 दूं, फिर 400 दूं, फिर 100 दूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. So what is the present value of all that money today? It is equivalent to 677.15. Is this clear? No, I just change the question. Okay.
suppose you get 76,000 in the first year, 50,000 in the next year, 80,000 in the third year, and 70,000 in the fourth year, and 45,000 in the fifth year. Okay. Suppose I change this. This is first year. Sorry. The rate of interest is say 8%. Okay. So tell me, what is the present value? What is the present value of all these cash flows? इसकी आज की वैल्यू कितनी है? अगर मैं आपको 2,58,822 तो कौन सा फॉर्मूला 2,58,822 यूज करेंगे हम? NPV. MPV, sir. Okay, and what should be the rate of interest? 8%. 8%. And then I'm just going to choose all the values. Fine. वो गलती से हो गया था, तो अभी दोबारा करते हैं. NPV 8%, and I'm going to go to the values now, okay, and choose all the values. So how much you said? 2,03,528. Is that okay? Okay. Yes, sir. अगर मैं आपको बताता हूं, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, then you can leave. Suppose there is an equipment which cost 2,05,000. आपने एक इक्विपमेंट खरीदा, आप एक अपनी मैनेजमेंट को बोल रहे हो कि ये 2 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, ये ले लो, और इसको लेने के बाद हमारी जो कॉस्ट है, पावर की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी. मैं इसको लगा देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको, 96,000, और इसको कर देता हूं मैं 90,000, और इसको कर देता हूं मैं से 78,000, और यहां ले लेता हूं मैं करीब 1,25,000 सपोज. So many of the people are working, okay, in the company. So you come with a proposal and you say, अच्छा ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो गई ना, इसकी अमाउंट को हम 25,000 कर देते हैं. आप एक ने प्रपोजल दिया आपने कि अगर मैं आज ये इक्विपमेंट खरीदूं 2,05,000 का, ओके, और इससे मेरी पावर सेविंग होगी इतने अमाउंट की. आपने किलोवाट आवर निकाला और रेट निकाला उसका, और आपने बताया कि मुझे इतनी सेविंग हो जाएगी पावर की. ओके, सो अब आप मैनेजमेंट को बताना चाहते हो कि ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, इसको करना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे. आप देखेंगे रिटर्न कितनी आ रही है, तो आप IRR फॉर्मूला यूज करेंगे. IRR, रेट ऑफ रिटर्न. ओके, एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दिस. सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग? व्हाट दिस प्रपोजल इज गिविंग यू, हाउ मच, you know, what is the return of this proposal, or what is the return on investment of this proposal? 18%. Is it good? Will your management accept this if all these figures are okay? Could you repeat it again? Yes, yes. आपके पास एक प्रपोजल है जिसमें कि आप 2 लाख रुपए का एक इक्विपमेंट खरीदोगे, और वो मशीन में लगाओगे अपने क्या कहते हैं अपने प्लांट में, और आपको हर साल इतनी सेविंग मिलेगी ऑन योर पावर कॉस्ट. पहले साल आपको 96,000 आपका पावर बिल कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 90,000, फिर 78, फिर 25,000, और चौथे साल के बाद इक्विपमेंट खत्म हो जाएगा. यानी इस इक्विपमेंट की लाइफ 4 साल ही है, और आपको इतनी सेविंग मिलेगी. ओके, तो आपने देखा कि आपको रिटर्न मिल रहा है 20%. तो आप सबसे पहले आपसे मैनेजमेंट बोलेगी इसकी रिटर्न कितनी है अभी. ओके, व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग? Okay, so what you are going to do is you are going to calculate the IRR, internal rate of return. Okay, तो आपने 2 लाख रुपए खर्चा और आपने इतने पैसे मिले आपको, तो आपकी रिटर्न आ गई 20%. और आपकी कंपनी जो है बैंक से 15% ब्याज पे पैसा उठाती है, और आपका ये इक्विपमेंट 20% रिटर्न दे रहा है. इज इट वर्थवाइल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Worthwhile, sir. वर्दी है. अब मैं आपको आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आप खुद निकालिए. एक इक्विपमेंट है जो, सर एक मिनट सर, इसमें सर जैसे इक्विपमेंट की कॉस्ट भी माइनस करके है 20%.
क्योंकि इक्विपमेंट 4 साल में हमारा अब मैं दोबारा खत्म हो बता रहा जाएगा हूँ ना। आपको, इसी एक इक्विपमेंट है, आपको 5 लाख रुपए में लगता है। ओके, कंपनी को 5 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। ओके, ये एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट है। ओके, विच विल सेव योर एनर्जी इफ यू इंस्टॉल दिस इक्विपमेंट। तो इसको आप 5 लाख नेगेटिव डाल दीजिए सर, 5 लाख। ओके, तो 5 लाख रुपए आपको ये खरीदना पड़ेगा, और आपने लगाया है कि इसकी जो सेविंग होगी, मतलब किलोवाट आवर्स आप बचाओगे। ओके, इतनी पावर आपकी कम कंजम्पशन होगी, उसको आपने रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेट से मल्टीप्लाई कराया, और आपकी जो है इतना आपको वापस मिलेगा। हर साल आपको इतना इतना पैसा का गेन होगा, आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। ओके, सपोज पहले साल आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है 1,25,000, फिर है 1,75,000, और इस इक्विपमेंट की लाइफ सिर्फ 4 साल है। आप बढ़ा सकते हो जितना भी चाहो, मैं तो वैसे दिया। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी सेविंग है 50,000, फिर 25,000। भाई, और आपकी कंपनी 15% से फाइनेंसिंग कराती है बैंक से। अगर बैंक से लोन ले तो उनको 15% देना पड़ता है। नॉट टेल मी वेदर दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल और नॉट। हाँ, Not acceptable. माइनस तो 13% ये क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, टू कैलकुलेट। माइनस 13% तो -13% है। चलो हम इसको यहाँ पर हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तभी तो बनेगा। इसमें आपको हम 3,25,000 है, तो ये आ गई आपकी। मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि वो अमाउंट कम आ गई थी। तो हमने बताया इधर आपकी सेविंग है 2,75,000, इधर है सेविंग 1.5 लाख, ओके, और इधर है सेविंग 75,000। अब बताओ, और आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लोन इज 15%। नॉट टेल मी इज इट एक्सेप्टेबल? Yes, sir. How much Yes, return you are getting acceptable. on this equipment? Yes, sir. यस सर, कित- एक्सेप्टेबल है सर। 31% होगा। 31%. 31% तो हम saving. क्या करेंगे इसके लिए, ये वाला जो आपने बताया था फॉर्मूला। तो ऐसे कई बार आपको प्रपोजल निकालने पड़ते हैं, जिससे आप बताते हो कि भाई इतना पैसा लगाएंगे और इतनी इतनी हमारी सेविंग होगी। ओके, और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, और हमारे को तो रिटर्न आ रही है 31%, तो वी शुड गो अहेड एंड डू इट। इज दैट ओके? सर ये रिटर्न पर ईयर की है? पर एनम कंपाउंड बेसिस पे है, यानी कि ये आपकी पैसा लगा और हर साल आपको इतनी इतनी रिटर्न मिल रही है। तो दिस इज बेसिकली अ रिटर्न विच इज कॉल्ड CAGR, विच इज कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, और फॉर्मूला है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि ये आपको जो है रिटर्न दे रहा है ये इक्विपमेंट 31% सालाना की। यानी कि आपकी कॉस्ट 15% आ रही है और आपको 31% रिटर्न मिल रही है बाय इंस्टॉलिंग दिस। 31% हर साल की रिटर्न है। प्लस 16% का प्रॉफिट हाँ, है। डेफिनेटली अगर आपकी कॉस्ट 15 है और आपको 31 मिल रहा है, तो ये तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा कंपनी को। फॉर्मूले की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल रेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। So many of times, in your company, they ask you कि आप प्रपोजल दे रहे हो तो आप बताओ कि भाई इसकी रिटर्न कितनी है, तभी तो लगाएंगे। आपको मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए आपको बताना पड़ेगा भी चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लें, मतलब थोड़ा सा बेटर कर लें, तो ये रिटर्न 20% आया है ना। तो आप कह रहे हैं 20% रिटर्न दे रहा है भाई, और हमारी कॉस्ट तो सिर्फ 15% ही आती है, तो वी शुड गो अहेड एंड इंस्टॉल बिकॉज इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर अस। इट विल इंक्रीज योर बॉटम लाइन एज अ कंपनी। इज दिस क्लियर? Okay. क्लियर। So now let's go to Yes. फिर हम थोड़ा सा छोटा ब्रेक रखेंगे भी और। ओके, अब आप ये निकालो क्वेश्चन, पढ़िए। राजवीर, यू कैन गो। रामवीर, आई थिंक Present value of an uneven cash flows. Consider that an investor has an opportunity of receiving following amounts at the end every year for 5 years. Year 1 1,000, year 2 1,500, year 3 800, year 4 1,100, year 5 400. Find the present value of the stream
of cash flows if the investor's required rate of return is 8%. तो निकालिए ये वो एनपीवी फॉर्मूला यूज करके यू कैन यूज एन एक्सेल शीट 3927 3900 हाँ 1300 3927 yeah absolutely right. So this is the formula we 27, use to calculate the net present value. Okay, fine. So ये वही formula हमने निकाल दिया 3927. So there are various ways you can use. Okay. अच्छा, last question and then we'll have. Should I have a break for 10 minutes and then again reassemble? एक बजे खत्म भी होने वाला ना हो जाएंगे हाँ, तो चलो 12:40 हो जाएंगे तो calculate the present 1 बजे value of the खत्म। following years and cash flows at 12% discount rate. $90,000 90,714 यही आ रहा है। 714 So just we'll use the calculator for use this Excel sheet to do it. So you have to tell me कितने साल है? Okay, amount कितनी? हाँ 6 years है। Okay, 6 years है। 6 years. Now tell me how much amount we shall receive in the first year? हाँ जी 25,000 25,000 25,000 34,000 4,000 34,000 ये परसेंटेज में आ रहा है, इसको हम फॉर्मेट सेल करते हैं, नंबर कर देते हैं। 34,000 और थर्ड ईयर में 12,000. 12,000 फोर्थ ईयर 22,000. सॉरी 22,000 Fifth में 17,000. एक सेकेंड यार। और फिफ्थ ईयर में कितना है? Year में सर 17,000. 17,000 ओके। सिक्स्थ Yes. ईयर में हाउ मच? 18,000. 18 18. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको एक 25,000 34,000 12,000 ये मिल रहा है पैसा हर साल और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो हाउ मच मनी यू शुड गिव टुडे so that you earn 12% and this is the money you are going to get in 6 years unequally. Okay, so what formula we are going to use? NPV, PV net present net present value So rate of interest कितना है? 12%। And I have to choose these values. Okay, so this comes to how much? 45,971 यही आ रहा आंसर? नहीं सर, वो फॉर्मूला लेने में थोड़ा ड्रैग वर्दी हो ये गया सर। अमाउंट ऊपर तो वाले से ठीक ली है ना हमने। अमाउंट ठीक है सर, वो फॉर्मूला में ड्रैग हो गया ऊपर वाला से। हाँ क्या था? फॉर्मूला में गलती है वो ऊपर वाला शेयर भी आ गया था तो दोबारा देखते हैं। रिसेंटली वैल्यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू 12%। ओके, और अमाउंट चुननी है मुझे। ये अमाउंट सही है ना सारी की सारी? यस सर। हाँ, तो 90,714। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज आपसे 90,714 रुपए ले लूं और आपको वापस करूं पैसे ऐसे ऐसे करके, तो और मैं आपको 12% रिटर्न दूं, तो आज आपसे मैं 90,000 लूंगा और आपको ये पैसे दूंगा, तो आपको 12% की रिटर्न आ रही है। इज दैट ओके?
Yes, sir. Yes, sir. Is that okay? Okay. Yes, sir. ये हो गया। हाँ, अब ये लास्ट दो चीजें बची हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सुन लीजिए आप बड़े आराम से। ये है, पढ़िए जरा। Perpetuity is an annuity that occurs indefinitely. Perpetuities are not very common in financial decision making. Present value of perpetuity is equal to perpetuity divided by interest rate. हाँ, या present value of this thing is P is equal to A upon I. अच्छा, ये हम इसको भी यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज और शेयर्स। तो लेकिन इसका पहले मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज आप कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी, आप यू गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड यू वांट टू बाय अ पेंशन प्लान। ओके, आपने एक पेंशन खरीदनी है इंश्योरेंस कंपनी से। आप चाहते हैं कि मुझे हर साल जब मैं रिटायर हो जाऊं, हर साल मुझे 1 लाख रुपया महीने मिले। ओके, तो मैं आज कितना पैसा जमा कराऊं, आइदर इन लमसम और टिल आई ग्रो टू माई एज ऑफ 60। देखो कई बार आपको पता, हाँ, Sir, perpetuity, what does perpetuity mean? जो चीज कभी खत्म नहीं होती है, इट विल कीप रिपीटिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप रिटायरमेंट, आपकी एज हो जाएगी 60 साल, उसके बाद आपको तो पेंशन मिलेगी। ओके, बट यू थिंक योर पेंशन इज गुड, नॉट गुड इनफ, and you want to buy a annuity plan from the insurance company, so that you keep depositing some money with the insurance company, okay, and every year or every month till you attain an age of 60 years, उसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाए। okay, so you say that I should get a pension of say 1 lakh rupees per month from the insurance company. How much money you are going to give today? Okay, so that's the formula. So we'll do a question in that basis. Okay, first a very simple question. Read this. Let us assume that an investor expects a perpetual sum of rupees 50,000 annually from his investment. What is the present value of this perpetuity if his interest rate is 10%? How much money you have to give to LIC or an insurance company if you want 50,000 annually? तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जो अमाउंट है उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। वेरी सिंपल फॉर्मूला, 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, हाउ मच यू गेट? 5 लाख। तो आज अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपको हर साल 50,000 रुपए साल के एंड में देंगे। ओके, कैसे देंगे? 5 लाख पे 10% ब्याज कितना है? 50,000। तो आपको तो ब्याज ही दे रहे हैं, और टिल द टाइम यू सर्वाइव यू आर गोइंग टू गेट 50,000 रुपीज, एंड मे बी एट द टाइम व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड योर फैमिली इज गोइंग टू गेट लंप सम मनी, जो आपने दिया था वो उनको वापस मिल जाएगा, बिकॉज दे आर अर्निंग 10% एंड दे आर गिविंग यू। सो बट दिस इज नॉर्मली नॉट द केस, बट यू वांट योर एन्युटी शुड ऑल्सो गो अप। फाइन, तो ये पढ़िए। When Sunil retires, he wants to have a pension of rupees 60,000 per annum to grow at 5% per annum. If the insurance company can get a return of 11% after meeting its expenses, what lump sum amount should Sunil pay now? हाँ, दिस इज वेरी to insurance इंपॉर्टेंट। company? आपको कितनी पेंशन चाहिए? कितनी चाहिए? और हर साल 60,000 per year. 60,000. And what is the 5%. rate of return which the insurance company can generate on your investment? 11%. तो आप कितने पैसे 11. लंप सम आज दे दो इंश्योरेंस कंपनी को, so that they give you 60,000 per annum and it should keep growing at 5%. Okay, the formula is P is equal to the amount today should be equal to annuity divided by I minus G. That means your rate of return which the company is going to generate minus the 5% increase which you are going to get. So that means it will be 60,000 divided by 6%, which is 11%, the investment return they are going to get for you, plus the 5% growth rate. That means how much money it should grow? 5%. Okay,
So that means you have to deposit 10 lakh rupees today. You will be getting 60,000 rupees, and every year it is going to grow at 5%. So पहले साल आपको कितना मिलेगा? 60,000. Next year कितना मिलेगा? 63,000. 5% है ना, और उसके बाद another 5%. So that means around 66,000. So आपका ऐसे पैसे ग्रो करता जाएगा हर साल. आपका इनका जो आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी पेंशन भी ग्रो कर रही है. तो उसके लिए आपसे आज LIC कितना लेगा? 10 लाख रुपए. ओके, सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं. लास्ट क्वेश्चन. हाँ, ओके, रीड दिस क्वेश्चन. How much would you need to deposit every month in an account paying 9% a year to accumulate by rupees 50 lakhs by age 65 beginning सो दैट at age 20? क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको आज कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा हर महीने, so that it grows to 50 lakhs by the time when you become 65 years of age. Okay, and you are today at 20 years. आप 20 साल के हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसा पैसा जमा कराऊं जो मेरे 50 लाख बन जाए, है ना? तो वो कैसे करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%. तो मंथली रेट कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने हर महीने जमा कराना है 0.7. टोटल ईयर्स कितने हैं? 45. क्योंकि आज आप 20 साल के हो और 65 ईयर्स तक आपको ये पैसा जमा कराना है, सो दैट इट ग्रोज टू 50 lakhs. तो मंथ कितने हो गए? 540. ओके, तो आज आपको जमा कराना है 675 रुपए 25 पैसे. कैसे? ये से. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.75. NPR is how much? 540. You want, what is the value you want? 50 lakhs. So what should be your installment today? Okay, it should be 675 rupees, so that it can grow to 50 lakhs. तो अगर हम इसको करते हैं क्वेश्चन को वापस, कितना पैसा चाहिए आपको? 50 लाख. आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आफ्टर 45 years. Okay, that means today you are 20, and at the age of when you reach 65, okay, so that means आपको आपके पास 45 साल है. Okay, and what is the rate of interest? 9% था. बहुत सारी एक्सेल शीट बन गई है. कौन सी एक्सेल शीट थी है? हाँ, ये वाली. तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, और ये आपकी जो है एज है, आज की एज, प्रेजेंट एज. दिस इज योर रिटायरमेंट एज. फाइन. सो ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से. तो इसका मतलब दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू आर गोइंग टू, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, फाइन. सो वी आर गोइंग टू से हाउ मच वी आर गोइंग टू यूज PMT फॉर्मूला. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर्स को भी करते हैं इसको. आपके पास 540 महीने हैं. ओके, और आपको 9% ब्याज मिलता है, या मंथली ब्याज मिलता है 0.75. ओके, एंड यू नीड 50 लाख रुपीज आफ्टर 45 years. सो लेट्स पुट दिस. 50 लाख रुपए चाहिए आपको. तो आप क्या करेंगे? कितने पैसे आपको देने चाहिए, कितने पैसे जमा कराने चाहिए आपको आज? तो इसका मतलब PMT फॉर्मूला, यू हैव टू कैलकुलेट द PMT. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.75%. ओके, एंड NPR इज हाउ मच? व्हाट इज द NPR? 45. नहीं, 540. यानी 540 महीने हैं और आपको 9% पर
एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 0.75. ओके, एंड यू वांट हाउ मच? 50 lakhs. ओके, तो 50 लाख रुपए चाहिए आपको 45 साल के बाद. तो आपको कितना पैसा जमा कराना चाहिए आज हर महीने? आप हर महीने 675 रुपए जमा कराएंगे अपनी जेब से 45 years तक. If your return is 9%, you will get 50 lakh rupees at the time when you retire. Is this आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन Yes, देता हूं sir. कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए. सर अगर सर इसी कंडीशन में आपको पर एनम आता सर, उस केस में हाँ, कैसे तो वो तो करेंगे? बड़ा सिंपल सा है. अच्छा, आप बताओ Per पर एनम month कितनी ना होके. चाहिए? अब यहाँ इसी कंडीशन में पर एनम है, तो लेट्स गो टू पीएमटी. ओके, Yes. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सीधा 9% रखना पड़ेगा. ओके, एनपीआर आपको जो है कितने Yes. रखने पड़ेंगे? कितने साल है? 45. 40, तो आप 45. यहां पर आ जाओ. 45. एंड हाउ मच यू वांट? 50 lakhs. 50 lakhs. ये 50 lakhs ही आ गया ना. तो आपको 9,508 रुपए आपको, एक सेकेंड, 9,508 है ना. सर इसमें ये भी है ना कि अगर इसमें तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो मंथली और जो एनुअल में डिफरेंस आ जाएगा ना. और इसको 12 से गुना करते हैं तो ये 8,100 होता है. हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल. तो आएगा ही, 11 आपको महीने का आपको इंटरेस्ट आपको कोर्स भी इसको तो 12 करते से हो. मल्टीप्लाई करते हो, यस यस तो इसको एक सेकेंड रुक जाते हैं. सॉरी, यस यस. इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाता है ये अमाउंट? 8,000. देखो, आप हर महीने जमा कराओगे तो आपको कम जमा कराना पड़ेगा ना. आप साल के बाद जमा कराओगे तो फिर Yes, आपको चाहिए 50 लाख, तो आपको ज्यादा जमा कराना पड़ेगा. हर महीने कराओगे तो आपका बर्डन और कम आ जाएगा, है ना. तो आपकी जेब से तो 8,102 Right. निकल रहे हैं सालाना, और आप सालाना किस्त रखते हो तो आपको 9,508 जमा कराने पड़ेंगे. हैव यू गॉट इट? राइट. इज इट ओके? अब एक क्वेश्चन Yes, लास्ट sir. पार्टिंग Yes, sir, क्वेश्चन. yes. ओके, सपोज आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए. एक करोड़ के लिए एक जीरो लगानी पड़ेगी ना. ओके, 1 करोड़ रुपए चाहिए. दिस इज 1 करोड़. और आपकी एज आज है 35 साल. ओके, और आपको पैसे चाहिए 60 साल के बाद. ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप सोचो कि आपने जो है इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया. ओके, हर महीने आपको जो है एक सिप लेनी है. ओके, आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में. आप सोचते हैं कि आपको रिटर्न 15% मिलेगी, तो आपको आपको आपकी कितनी सिप होनी चाहिए? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए सो दैट इट कैन ग्रो 1 करोड़? थ्री जीरो एट थ्री 3083. यानी आप 3883 पैसे रुपए रोज हर साल हर महीने की एक एसआईपी करो इन अ म्यूचुअल फंड, एंड यू एक्सपेक्ट अ 15% रिटर्न इन दिस मेनी इयर्स, इन 25 years. ओके, फाइन. आपके पास 25 साल है, 15% रिटर्न देती है स्टॉक मार्केट, तो आपको 3,000. ऑल ऑफ यू हैव कैलकुलेट दिस अमाउंट सेम, सो लेट्स कैलकुलेट. तो इधर हम 12 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. कितने आपके पास महीने हैं? अभी 300 महीने पड़े हुए हैं. ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो इतना है. 1.25. 1.25. सो एक 1.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. 300 महीने आपके पास हैं बिफोर यू अटेन एज ऑफ 60, and you want after 60 years 1 crore in your bank account, okay, or in your mutual fund investment account, which you can just encash it and enjoy that money forever for the rest of your life. So how much money you should save now? So let's go to the formula. Let's go to, and we want to calculate PMT. Okay, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 1.25%. Okay, so this is the money rate of interest I am earning, and how many months? 300. So 300 साल, 300 महीने आपके पास हैं. ओके,
and what is the amount you are getting? 1 crore. So this is 10,000. 1 This crore. is 1 lakh, 10 lakhs, 1 crore. So somebody calculated rightly. It is 3,083. Is it okay? Yes, sir. Okay, Right. तो अब हम इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर देते हैं, सबको क्लोज करते जाते हैं एंड जस्ट काफी सारा माल खुला हुआ। हाँ, अब बताइए आप, आई मीन यू वर एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुडे? एनी डाउट्स? अतुल? क्लियर? ऐसा क्लियर था। सो क्लियर है सर। सर ये एक रिक्वेस्ट है, पीपीटी सर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, सो दैट्स व्हाई जैसे पीएमटी और पीवी और एनएफटी जहाँ जहाँ बताए हैं आपने